आज हम लोगों के साथ हैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जो प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में है. So he will begin his discussion on the Education Tribunal Bill which has been passed, which will be the immediate point of context of discussion. 3rd May, government placed 4 bills before the parliament. What would this tribunal do and how would it affect or change the character of education? But the government moved it on the 3rd of May, and with it were other bills. One very important bill was the Foreign Universities, and it's a long name. I would only restrict myself to saying Foreign Universities Bill. The government decides on certain things, develops a format, circulates it amongst those whom it is going to affect, and once the stakeholders agree on that, have given their opinion, then these are put before the parliament as bills. All the 5 bills which were going to be placed in the last session, none of them was discussed, and there was a hue and cry. That's another bill which is pending, and in all likelihood it will be passed. As he mentioned, that tribunal would be a new body which would have the legal powers, and now it has become an act. In fact, when the parliament passed it yesterday, it becomes an act. It has the powers to legislate and sit on judgment on issues related to education. अगर आप TRAI को जानते हैं, TRAI का क्या काम है, TRAI क्या करती है, वैसा ही कुछ काम ट्रिब्यूनल करेगी, ये एजुकेशनल ट्रिब्यूनल करेगी. अगर एजुकेशन के मैटर्स में ट्रिब्यूनल हो तो उसके सामने क्या इश्यूज होंगे, या आज स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स जिनको हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, बिसाइड्स द प्रोवाइडर्स, द यूनिवर्सिटीज, क्या इश्यूज हो सकते हैं. पहला इशू जो होगा वो होगा फीस का. अगर स्टूडेंट्स फीस दे रहे हैं तो उनको रिटर्न चाहिए. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इंडियन सर्कमस्टांसेस. ये कहना कि हमने फीस दिया है अगर, तो हमको उसके लिए क्या रिटर्न मिल रहा है, और अगर हमारा क्लास नहीं हुआ, हमको पढ़ाया नहीं गया, तो फीस लौटाया जाए या उसके बदले में मुआवजा दिया जाए या जो भी है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. क्लास का साइज़ अगर कोई तय किया गया है तो वो इस इंस्टीट्यूशन के पास है कि नहीं, और जो टीचिंग लर्निंग कंडीशन है वो एडिक्वेट है कि नहीं. आई एम रेजिंग ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर अदर एजेंसीज एंड बॉडीज. I wonder if you would know about the National Council for Teacher Education, NCTE. It has been in the news for all the good and bad reasons. Now, for teacher education, NCT, for engineering management education, AICT, has the authority to deliberate, decide on conditions, and also fine, reprimand institutions. ट्रिब्यूनल का क्या काम होगा जब ये लोग, ये बॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ये ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इसका एक परिप्रेक्ष्य है. जैसा कि हमने आपको कहा कि 3rd मई को फॉरेन यूनिवर्सिटीज बिल भी प्लेस किया गया था पार्लियामेंट को, और ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज जब आएंगे, ये क्या क्वालिटी देंगे एजुकेशन, उसको गाइड और मॉनिटर कौन करेगा. हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि शायद जो इंस्टीट्यूशन आएंगे वो एक दूसरे कानून से गाइडेड होंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज बिल है. एंड लेट मी गिव यू सम फीडबैक अबाउट दैट बिल. दैट व्हाई आई मेंशन लेफ्ट, बिकॉज आई गॉट होल्ड ऑफ पेपर्स थ्रू अ जर्नलिस्ट अगेन from the ministry, which starts with this line that this bill could not be passed in the parliament because of the opposition of the left parties. This is the official document. कि अगर कोई भी संस्था होम इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, तो वो इंडिया में आकर के संस्था बना सकती है, बैठा सकती है और डिग्री दे सकती है. लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी डिस्टॉर्टेड केस. द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ अफगानिस्तान under Osama bin Laden's government approves a university, and we have diplomatic relations with Afghanistan, not today, even when there was a different government.
That institution comes to India through their High Commission or embassy and establishes an institution. It fulfills the conditions of the act. इन दोनों को अगर देखें तो दो चीजें निकल के आती हैं, दिखती हैं. एक तो ये कि अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने में इंटरेस्टेड हैं या रोकने में इंटरेस्टेड हैं, तो पूरे का पूरा बिल ये इन्हीं चीजों की बात कर रहा है. आएंगे तो स्टैब्लिश कैसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा, फीस कैसे चार्ज करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग, not even teaching. And that is what in academia we say that till the 1980s it was teaching in the universities. Since then the whole paradigm has changed. We only talk of learning. आप ये सारे बिल्स पढ़ें तो आपको कहीं ये नहीं दिखेगा कि ये कहीं भी लर्निंग पर जोर देता है. इस एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को हेड करेगा एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट. उसके मेंबर्स होंगे फॉर्मर वाइस चांसलर और इक्विवेलेंट डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. It has to be 3-member committee, 1 judge, 1 administrator and only 1 teacher, if that vice chancellor is a teacher. So 33%.